Hello students, this topic is countably, countably infinite set or denumerable set. Denumerable set. Let's talk about its definition. Definition is definition countably infinite set or denumerable set is an infinite set. An infinite set A is said to be countably infinite or denumerable denumerable if and only if A is equivalent to n and the set of natural numbers. The set of natural numbers. Natural numbers. Right? So that is A is equivalent to this means which means there is a 1 and 1 map between A and natural numbers. So for equivalent sets, please refer to my previous video number 1. I had told in that video regarding this equivalent sets. So example 6, let us see an example. Example 1. Set of integers is denumerable or countably infinite. So let's see how it is. Take z is equal to set of integers. To show that z is denumerable or countably infinite, we have to show that that we have to show that z is equivalent to natural number, the set of naturals. Now, in order to prove equivalence प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? We have to show that there exists a 1 and onto map between z and n. Let's see, define a map. Define the map as from z to n by f of x is equal to 2x plus 1, x is less than 0, 1, x is equal to 0, and 2x when x is less than 0.
Now we have to show that. Now we have to show that f is 1 1 and 1 2. These are the two things we have to show. First, we will claim f is 1 1. Let's talk about this. और 1 1 के लिए क्या करना पड़ता है? 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, उसके एलिमेंट को इक्वल करना पड़ता है. तो लेट्स करते हैं that x and y belongs to z. डोमेन में 2 एलिमेंट ले लिए, so that f of x is equal to f of y. Now 3 cases arise. 3 cases arise होंगे यहाँ पे. 3 cases arises. केस 1 देखते. केस 1. इस 1 में क्या होगा? जब f x और f of y जो होंगे आर इवन, ये दोनों इवन होंगे. ठीक है. अगर इवन होंगे तो इवन के लिए क्या चीज है? हमारे पास डेफिनेशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग ये डेफिनेशन है. इसका मतलब एफ एक्स किसके बराबर होगा? 2x के बराबर रहेगा. एंड एफ ऑफ वाई किसके बराबर होगा? 2y के बराबर होगा. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया? नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 2y. इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू y. देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y. फर्स्ट केस में तो क्लियर हो गया, ये 1 1 हो सकता है. केस सेकेंड, when f(x), f of y are odd except 1. क्योंकि except 1 के लिए हमने कुछ और डिफाइन किया हुआ, except 1, then what happens? जब ये odd होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है इसके लिए, f(x) के लिए. तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? f(x) की 2x plus 1 एंड f of y की वैल्यू क्या आएगी? 2y plus 1. नाउ ये हमें पता है कि f(x) इज इक्वल टू f of y है. इसका मतलब क्या हो गया? 2x plus 1 is equal to 2x plus 1 2y plus 1. ये 1 1 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. ये आएगा x is equal to y. Again we are getting what? We are getting fx is equal to f of y implies x is equal to y. अब थर्ड केस लेते हैं. केस थर्ड. केस थर्ड, when जब fx क्या हो जाएगा? is equal to 1 हो जाएगा और f of y क्या हो जाएगा? ये भी 1 होगा, दोनों बराबर होंगे. सो जब 1 होगा तो हमारे पास क्या आता है? 1 के लिए x corresponding to this is fx1, तो 0 हो जाएगा. x इक्वल टू 0 होता है इसमें. सो fx is equal to 1 implies x is equal to 0 and f of y is equal to 1 implies y is equal to 0. This means that इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए. नाउ f of x is equal to 1 is equal to f of y implies x of 0 is equal to y. इसका मतलब क्या हो गया? f of x is equal to f of y implies x is equal to y. Therefore, in all the cases, in all the three cases, fx is equal to f of y implies x is equal to y. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है? For all x y belongs to domain. इसका मतलब क्या होता है? f क्या हो गया? f is 1 1 मार्क. ठीक है. अब दूसरा लेते हैं. दूसरा हमें बताना है f is 1 2. तो f is 1 2. ये बात करते हैं अब इसके ऊपर. अब आपका मैप कहाँ से कहाँ? z से लेके n तक. अब मैं कहाँ से लूंगा? यहाँ पे y दूंगा, बता दूंगा वो यहाँ पे है. तो ये एलिमेंट आपको मिलेगा x, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आपको बताना है. ठीक है. एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बताना होता है आपको. तो यही चीज बताते हैं हम लोग. तो लेट करते हैं y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो y किस टाइप का हो सकता है? 3 केस अराइज अगेन. 3
cases arises. Case 3 cases arises. कौन कौन सा केस है? केस 1. इसमें केस 1 क्या होगा? when y is even, that is y is equal to 2x plus 1. x कहाँ जाएगा? ये आपका नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये सारे एन में, ये एन में है तो नेचुरल होगा. ठीक है. अब मुझे पता है, वी नो x बिलोंग्स टू n क्या होता है? ये कंटेनिंग z होता है. इसका मतलब x बिलोंग्स टू z हो गया. तो मैंने y कहाँ लिया? y मैंने लिया n में, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है? x में मिल रहा है z. देयरफॉर फॉर एनी y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट. अब y कैसा है? ऐसा है. तो x कैसा है? आपके पास x लगाओगे इसको, x कैसा आएगा? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y. तो ये क्या आएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू y हो गया. इसका मतलब ये ऑन टू हो गया. फॉर इवन तो ऑन टू हो गया. अब दूसरा केस देखते हैं, ऑड केस सेकंड. व्हेन y बिलोंग्स टू n इज ऑड. इसका मतलब क्या हो गया? y क्या हो जाएगा? ओहो, यहाँ पे ऑड लिख दीजिए. यहाँ पे मैंने ऑड वाला केस लिख दिया है, ये ऑड लिख लीजिएगा. यहाँ पे ऑड लिख लीजिएगा. इवन वाला दोबारा करते हैं, ये ऑड लिख लीजिएगा. ठीक है. दिस इज ऑड. सो सिमिलरली केस सेकंड, दिस इज इवन when y belongs to n is even. This implies y is equal to कैसा होगा? ये 2x x belongs to z इतना का होगा इवन. तो ये x कहाँ पे है? सॉरी, x इज n. क्योंकि ये सारा y क्या है? n में. तो x इसमें n में होगा. नाउ अगेन सेम लॉजिक. x belongs to n is containing z. This implies what? That for any y belongs to n, y is equal to लिख लीजिए 2x, y is equal to 2x belongs to n. There exists x belongs to z. z में चला जाएगा. सही है. f of x is equal to 2x is equal to y. यही तो आपका है. तो यहाँ से आपको क्या मिला? इसका मतलब एफ एक्स क्या है? y हो गया, है ना. तो वही आप y ले रहे हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x मिलता है. केस थर्ड देख लीजिए. केस थर्ड, व्हेन y इज इक्वल टू 1. y इज इक्वल टू 1 होगा. देन बाय डेफिनेशन नहीं मिलेगा. देन 0 बिलोंग्स टू, obviously 0 belongs to z. Then 0 belongs to z such that f of 0 is equal to 1 by definition. ठीक है. तो ये क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग टू y. y किसने कहा? नेचुरल नंबर है ये. तो y मैंने ले लिया इसमें n में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ये 0 मिल रहा है z में. बाय दैट दिस हैपेंस. ये डेफिनेशन है हमारी. इसका मतलब क्या हो गया? तीनों केसेस में हमें एक एलिमेंट मिल रहा है. अगर y n में लेता हूँ 10 10, और हमारा मैप यहाँ से यहाँ है. देखते हैं, कोई भी एलिमेंट यहाँ लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ x मिल रहा है. बस फॉर एनी y belongs to n, there exists x belongs to, that's in all cases. In all cases, ये लिख लीजिए. For any y belongs to n, there exists x belongs to z such that f of x is equal to y. कहने का मतलब ये, कोई भी यहाँ पे लोगे उसकी प्री इमेज आपको मिलती है. प्री इमेज मिलती है तो दिस इज ऑन टू. ऐसा होता है. इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज ऑन टू. देयरफॉर f from z to n is 1 1 and 1 2. ये 1 1 एंड 1 2 है. इसका मतलब क्या हो गया? f इज बाइजेक्टिव. अगर ये बाइजेक्टिव मैप है तो therefore z is equivalent to n. That is z is equivalent to n. This means that z is denumerable or countably infinite. ये तो प्रूव करना था.
So this completes the proof that set of integers is denumerable, or that is countably infinite. Right? So this was the definition. So thank you.